فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الوالي الولي السيد الرضي الإمام الوسيع الحاكم من السليل المدفون بأرض الغريب، مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب، اسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا علي بن ابي اللهم بال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال تعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ ایک صلوات آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آصف حسین ابن سید انوار حسین صاحب۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان ایمان، یقیناً 40ویں کے بہانے سے 20 سال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے، اور ایسی مجالس صرف مرحوم کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، اہل بیت رسول کا تذکرہ ہو، قرآن و اسلامی اور دینیات کی باتیں ہوں، تو سامعین کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی، حقیر کے لیے بھی ذخیرہ قبر و آخرت قرار پائے گی، اور مرحوم کو تو انشاءاللہ مسلسل ثواب پہنچے گا۔ اسی وجہ سے یہ ذکر رکھا ہی جاتا ہے، یہ تذکرہ رکھا ہی جاتا ہے کہ ہمارے پاس مرنے کے بعد مرحوم کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے
اذکروا موتاکم بالخیر، ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ ماشاءاللہ کربلائی صاحب آ گئے ادھر، ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ لہذا حدیث کے مطابق ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر سے یاد کرو۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس انتقال سے لے کر کے جب تک ان کے چاہنے والے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کریم اور رحیم اس وجہ سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف بہانا چاہتا ہے کہ انتقال ہو گیا، اب دنیا میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن ان کے بعد بھی اگر تم تھوڑا سا بھیج دو تو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تم ایصال ثواب تو کر کے دیکھو، ایک فاتحہ بھی پڑھ دیا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تو پروردگار عالم بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جو انتظام ہے، اور اگر چیلنج بھی کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ چیلنج صحیح رہے گا کہ جتنا مغفرت کا انتظام ہمارے پاس ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جتنا زیادہ رحم و کرم کا انتظام، مغفرت کا انتظام، اللہ کی برکت کا انتظام، آپ دیکھیں کیسا کیسا مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا جو ہماری مغفرت کے لیے آیا تھا، ہمارے اوپر رحم و کرم کے لیے آیا تھا، اپنی برکت لے کے آیا تھا، اپنی رحمت لے کے آیا تھا۔ رجب کا مہینہ اتنی برکتوں کے ساتھ آیا اور درمیان سے چلا گیا۔ شعبان کا مہینہ ایک دم آخری حصے میں ہے، اور انشاءاللہ آپ استقبال کرنا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، استقبال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں جانا ہے، اور آخر وجہ کیا ہے کہ 2 مہینے کی تیاری آپ سے کروائی گئی۔ یہ رجب کا مہینہ ایسا ہی نہیں تھا، یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہی نہیں آیا تھا، بلکہ یہ 2 مہینہ آپ سے جو ہے آمادہ کرنے کے لیے، آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ اللہ کی میزبانی میں جانا ہے، آپ مہمان ہونے والے ہیں، وہ میزبان ہونے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حنان ہے، ہمارا منان ہے، ہمارا دیان ہے، ہمارا سوان ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا عالم ہے، ہمارا عامر ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کریم ہے، ہمارا رحیم ہے، ہمارا فہیم ہے، ہمارا قیس ہے، ہمارا جو ہے دینے والا ہے، ہمارا موتی حقیقی ہے۔ ایک ایک بہانے سے اب جو رحمت کی چھینٹیں نہیں پڑنے والی ہے بلکہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے۔ انسان جتنا چاہے رحمتوں میں جائے، جتنا چاہے برکتوں میں جائے، اس لیے کہ ابھی تک 11 مہینے تک ثواب کے لیے ایک حد معین تھی، لیکن یہ پہلی تاریخ آئی اور عید سے پہلے تک اتنا ثواب ملے گا کہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ صلوات بھیجے آپ ایک ایک بات پر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام طور پر آج کل آپ کو ایک کے بدلے میں 10 مل جائے گا، لیکن ماہ مبارک رمضان آیا تو ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے جو چالاک افراد ہیں مومنین میں، وہ ایسی سورے پڑھتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں کہ جتنا ہو سکے ایک ایک آیت کر کے بھیجتے رہے۔ 30واں پارہ بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ قل اللہ، کہ ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور یقین جانیے ہر چیز کا ثواب، یہاں تک کہ جو 11 مہینہ جس کا ذکر نہیں تھا کہ اس میں ثواب ہے، اس کا بھی ذکر۔ سونے کے لیے 11 مہینے تک کوئی ایسی آیت اور روایت نہیں ہے کہ آپ سو جائیے تو آپ کو سونے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب ایک روزہ دار روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو ایک ایک نفس اس کی تسبیح کے برابر ہوتی ہے، تحلیل کے برابر ہوتی ہے، تقدیس کے برابر۔ صلوات بھیجا آپ حضرات۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آپ استقبال کرنے والے ہیں انشاءاللہ 3 دن کے بعد، بلکہ بہت سے تو لوگ 3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تاکہ متصل کر دیں۔ لہذا استقبال میں ہے، تیاری میں ہے، ہر چیز کا ثواب 1 درہم، 1 دینار،
1 रुपया आप निकालेंगे अल्लाह की बारगाह में सदका, तो जो 11 महीना देते तो उसका हिसाब अलग है, माह मुबारक रमजान में अलग है। लिहाजा ये महीना खैरात का महीना है, मुबर्रात का महीना है, ज़कात का महीना है, खुम्स का महीना है, सदकात का महीना है, अता का महीना है, मुवाहिब का महीना है, मिस्कीनों का महीना है, यतीमों का महीना है, असीरों का महीना है, गरीबों का महीना है, अता का महीना है, बका का महीना है, रहम का महीना है, करम का महीना है, रहमत की बरसात का सलवात भेजे आप हज़रात। बहुत सरसरी तौर पर यकीन जानिए ये साले सवाब की मजलिस है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजमे में यहाँ या जो सुन रहे हैं अगर एक भी लब्बैक कह गया तो उसको तो सवाब मिलेगा, मरहूम की कब्र में भी मुसलसल सवाब मिलेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इब्तिदा में ठहर करके ये भी अर्ज कर दिया जाए कि इंशाअल्लाह माह मुबारक रमजान में आपके लिए बड़ी तैयारी रही। माशाअल्लाह मस्जिद फिर से अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई है, बेहतरीन, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आला साहब ने बड़ी कोशिश किया, चलो हाथ भेजा आप हज़रात। और माशाल्लाह जैसे जामा मस्जिद के लुक होना चाहिए देखने में, अल्हम्दुलिल्लाह जा करके देखें तो इतनी तैयार हो रही है तो हमको नाशुक्री नहीं करना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने हर तरह से हमारे लिए आमादगी रख दी कि मस्जिद में मुहैया है, जामा मस्जिद में मुहैया है, जामा मस्जिद के अलावा जमात भी है, जुमा भी है, इबादत भी है, इताहत भी है, दर्स भी है, बहस भी है, मुबाहिसा भी है, सवाल जवाब भी है। तो हम अल्लाह की रहमतों से भागे ना, जितना हो सके मस्जिद में आए, इंशाअल्लाह वहां पर अल्लाह ताला के रहमो करम से आपके लिए सारी चीजें आमादा हैं। उसके बाद नमाज के बाद जो 15-20 मिनट बैठा जाता है, ऐसे मसाइल को दोहराया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। लिहाजा तमाम नौजवानों के लिए लाजिम है कि दर्स में बैठे आकर के। सलवात भेजे आप बिलखुसूस हमारे जो नौजवान नौशेरा के हैं, थोड़ा सा दूर पड़ता है 2 किलोमीटर, लेकिन बहरहाल आप शहर जाते हैं, न जाने कितना काम पड़ता है। तो जैसे आप शहर जाते हैं ऐसे मस्जिद चले जाए, और मस्जिद जाए तो ये सोच के जाए कि माह मुबारक रमजान है, आधे घंटे में काम नहीं चलेगा कि सिर्फ जमात तो थोड़ा सा इफ्तार करके चले आए, नहीं, कम से कम 1 घंटा पूरा वक्त देना पड़ेगा, न अजान से लेकर के दर्स तक इंशाअल्लाह। फिर देखें कितनी तब्दीली आ जाती है, इसलिए कि दर्स के बहाने से न जाने कितनी बहस आती है। अखलाक की बहस इसमें है, किरदार की बहस इसमें है, कुरान की बहस इसमें है, तिलावत इसलिए कि अल्लाह की मेहमानी में आप गए हुए हैं। और आप कहेंगे दलील क्या है? माशाअल्लाह ऐसी दलील कि कुरान से, हदीस से, रिवायत से सारी दलीलें आपके जहन में है। अब एक आम दलील जो आप जो है महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये महसूस साथ से है। आप कहेंगे हाँ ये तो दलील की बात है कि अल्लाह की मेहमानी में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह की मेहमानी में जाने से हमको पता कैसे चलेगा कि उसकी मेहमानी में चले गए? तो माशाअल्लाह बहुत से मेहमान आए हुए हैं, उनको ये एहसास होगा कि जब कोई अपने घर से निकल के बाहर मेहमान बन के जाता है तो घर में रोजमर्रा की चीज खाता है, एहतमाम नहीं करता, लेकिन जब मेहमानी में जाता है देखता है 2-4 आइटम नए नए रखे हैं, फौरन जहन में आ जाता है मेहमान बन के बैठे तभी तो ये रखा है, तभी तो ये रखा है। इसी तरह से आप अल्लाह के मेहमान आप मस्जिद में बन के गए तो देखा जो साल भर नहीं खाते, चना भी है, मटर भी है, न जाने कितनी चीजें, ये नए नए आइटम नहीं है, इशारा है कि आप मेहमान बन के आ गए हैं। ये अल्लाह का एहतमाम है, ये रसूल अल्लाह का एहतमाम है, ये इस्लाम का है। सलवात भेजे आप हज़रात। बहुत सरसरी तौर पर 2-4 कलिमात अल्लाहु अकबर कि आप कैसी मेहमानी में जा रहे हैं, कैसा इंतजाम हो रहा। और यही वजह है कि दुनिया में कोई कितने ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वजीर आजम बुला ले, वजीर आला बुला ले, पता चला कि 2-4 मिनट की मुलाकात हो तो ऐसे ही आप उठ के नहीं चले जाएंगे। 2 दिन पहले अगर इत्तिला मिल गई तो आप 2 दिन से तैयारी करेंगे, लिबास भी अपना देखेंगे क्या पहन के जाएं, सूट बूट कैसा होना चाहिए। अगर तहरीर ले जा रहे हैं तो 10 आदमी को दिखाएंगे कि ये तहरीर जो है वहां पर पेश करना है, ये जो है काम वहां पर दिखलाना है। तो ऐसे ही उठ के नहीं चले जाएंगे कि वजीर आला के सामने जाना है, वजीर आजम के सामने जाना है। तो दुनिया के चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कोई 2 दिन की तैयारी उनके लिए काफी हो जाती है। लेकिन अगर अपना मालिक बुला ले मेहमान तो 2 दिन के रजब में भी तैयार होना है, शाबान में भी तैयार, 2 महीने के लिए तैयार हो गए, अब अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए। सलवात भेजे आप। अल्लाह अकबर। और ये अखली बात है, जब अल्लाह ताला लुटा रहा है,
अपने सवाब को बहाने बहाने से कि आप अच्छी बात भी कर रहे हैं उसका भी सवाब मिल रहा है, नसीहत कर रहे हैं उसका भी सवाब मिल रहा है। इफ्तार में रसूलुल्लाह ने जब बयान किया तो एक साहब खड़े हो गए, गरीब थे बेचारे, नए नए मुसलमान, कहा कि हुजूर आपने तो ऐसा बयान किया तो ये तो अमीरों के लिए है कि इफ्तार कराने का ये सवाब है, इफ्तार कराने के सवाब है। जब रसूलुल्लाह की बहस तमाम हो गई तो वो साहब खड़े हो गए कि हुजूर हमारे लिए भी कुछ बताइए, हम नए नए मुसलमान हैं, छोड़ करके आए हैं, घर भी छोड़ना पड़ा, कुनबा भी छोड़ना पड़ा, गुर्बत के आलम में है, हम क्या कर पाएंगे कि वही सवाब हासिल कर लें। रिसालत माम ने फरमाया नहीं, मैंने जो इफ्तार के सवाब में बयान किया सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक रोजेदार को 2 घूंट पानी पिला दो, वही सवाब मिलेगा जो अमीरों का सवाब है, वही सवाब मिलेगा जो मालदारों का। एक सलवात भेजा एक खजूर पेश कर दो उसके सामने, ये खजूर पेश करना आपको वही सवाब दिलाएगा जो 1 लाख भी खर्च करने वाला आमादा। बहुत सी मस्जिदें माशाअल्लाह कि हर तरह से लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा भी, हम भी शिरकत कर लें। तो अल्लाह की बारगाह में बस एक दलील देते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कि आप देखें यहाँ पर जब अल्लाह ताला सवाब लुटा और अकली तौर पर है, हर अक्लमंद ये चाहता है कि अगर चांद ऐसा मिल गया है तो ले लो, अगर मौका मिल गया तो ले लो। अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह को खोल दिया है, अपनी रहमत को खोल दिया है, आसमान के दरवाजे को खोल दिया है, रहमतों की बारिश हो रही है, सवाब की बारिश हो रही है, रजा की बारिश हो रही है, जजा की बारिश हो रही है, रहमत की बारिश हो रही है। इस्मत बाप भी खुश है, रसूलुल्लाह भी खुश है, अली भी खुश है, औलादे अली भी खुश है, औलादे ज़हरा भी खुश है। आप रोजा रख रहे हैं, आप अल्लाह की मेहमानी में जा रहे हैं, वो मेजबान बन रहा है, सवाब को लुटा रहा है। रात में भी सवाब है, दिन में भी सवाब है, सहरिन भी सवाब है, इफ्तार में भी सवाब है, तिलावत में भी सवाब है, तमाम चीजों में सवाब है। अब अक्ल क्या कहती है? अक्ल यही कहती है जितना हो सके ले लो। आप कहेंगे इसकी मिसाल क्या? फिर मैं दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ। आप बड़ा सा थैला लेकर के मंडी गए, बहुत एहतियात से 200 का नोट ले गए और सोच करके कि 4-5 आइटम लेकर के आना है। घर में पूछा क्या क्या चाहिए, पता चला बताया गया प्याज लेकर के आओ, आलू लेकर के आओ, टमाटर लेकर के आओ। लेकिन 1 घंटे बाद आए तो देखा थैला भरा हुआ है, उसमें दसियों सामान है। अब पूछने वाले ने पूछा आपने तो 2-4 आइटम बताया था, इतना थैला भर के क्यों लाए हो? कहा कि आपको मालूम नहीं आज मार्केट सस्ती हो गई है और आकर ये कहती है जब चीज सस्ती हो जाए ज्यादा से ज्यादा ले लो। तो जैसे दुनिया में है ऐसे अल्लाह के लिए है कि अल्लाह की मार्केट सस्ती और पूरे महीना लूट लो, रहमत को ले लो, बरकत को ले लो, सवाब को ले लो, जदा को। एक सलवात भेजे अल्लाह अकबर। इससे आसान कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। एक सलवात भेजे और हर चीजें यकीनन इतनी देर से आप सुन रहे हैं तो आपको यह भी एहसास होगा कि ये सारी चीजें जो आ रही हैं आखिर इसका मंबा क्या है, इसका सर चश्मा क्या है, ये कहां से चीजें हमको इनायत हो रही हैं। हवाला पूछेंगे ना, एक तो आम हवाला होता है कि आम किताबें, लेकिन हम खास हवाला पेश कर दें कि ये सारी चीजें जो हमको मिल रही है, सारी किताबें इसी महीने में मिली। तौरात का नुज़ूल माह मुबारक रमजान, इंजील का नुज़ूल माह मुबारक रमजान, ज़बूर का नुज़ूल माह मुबारक रमजान, कुरान का नुज़ूल माह मुबारक रमजान, सहीफ़ा आदम माह मुबारक रमजान, इब्राहिम पर नाजिल हुई किताब माह मुबारक रमजान, सारे अंबिया पर 25 सहीफे नाजिल हुए इसी महीने में, शबहाए कद्र इसी महीने में, शबहाए मग़फ़िरत इसी महीने में, शबहाए रहमत इसी महीने में, कुरान की तलावत सबसे ज्यादा इसी महीने में। हर चीज के लिए बहार होती है, कुरान की बहार आने वाली है। तो आप कहेंगे और माशाअल्लाह वक्त में आ जाएंगे जहां दूर दूर से आए हुए हैं, ये जुमला ले जाइए, बहुत बड़ा हवाला मैं दे रहा हूं कि आखिर तमाम चीजें कहां से मिल रही है। तो कुरान की एक आयत ने बताया कि जितनी चीजें तुम ले रहे हो फिर लहवे महफूज, ये सारी चीजें लहवे महफूज में है। या रसूल अल्लाह, अब लहवे महफूज के लिए हम कहां पर चले जाए? हमको तलाश करना है कुरान कहां से, इंजील कहां से, तौरात कहां से, ज़बूर कहां से, सहीफे कहां से, लतीफे कहां से, नदीफे कहां से, शरीयत कहां से, इबादत कहां से, तरीकत कहां से, हिम्मत कहां से, शुजाअत कहां से, सखावत कहां से, औसिया कहां से, अंबिया कहां से, औलिया कहां से, अत्किया कहां से, सुलहा कहां से आए, मोमिन कहां से आए, मुत्तकीन कहां से आए, तौरात कहां से आई, अंबिया कहां से आए, शरीयत कहां से आई, तरीकत कहां से आई, सुन्नत कहां से आई,
तजदीद कहाँ से, तहमीद कहाँ से, अदान कहाँ से, अकामत कहाँ से, तिलावत कहाँ से, फिरासत कहाँ से, क़ियासत कहाँ से क्या सुन रहे हैं आप? एक सवाल भेजा बदला ये सारी चीजें कहां से आई, हम कहां तलाश करने के लिए जाएं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हवाला तो दे दिया कि ये सारी चीजें जो तुम सोच रहे हो फी लहवे महफूज, वो लहवे महफूज में है। परवरदिगार आप कहां तलाश करें? क्या पहले आसमान पर जाएं, दूसरे आसमान पर जाएं, तीसरे आसमान पर जाएं, चौथे आसमान पर जाएं, पांचवें आसमान पर जाएं, छठे आसमान पर जाएं, सातवें आसमान पर जाएं, मलय आला पर चले जाएं, सिदरतुल मुंतहा पर चले जाएं, काबा कौसैन पर चले जाएं और अदना मिंदी के मंजिल में चले जाएं, अर्श मुअल्ला के पास चले जाए, गिलमान के पास जाए, कुरान के पास जाए, तस्लीम के पास जाए, कौसर के पास जाए, जनान के पास जाए, जिब्राइल के पास जाए, मिकाइल के पास जाए, इजराइल के पास जाए, महिलाइल के पास जाए, सलसाइल के पास जाए, अहले मलक में पहुंच जाए, अहले फलक में पहुंच जाए, सातों तबका पार कर ले और क्या नीचे चले जाए, पहली जमीन दूसरी जमीन, आखिर हमको तलाश में नहीं मिल रहा है तो रसूलुल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे कि परवरदिगारा रसूलुल्लाह के सदके में वहां तक गए नहीं मिला, जमीन के तबकों में गए नहीं मिला, रिसालत माफ करेंगे, इंतजार करो जब 13 रजब आएगी तो मैं बताऊंगा सारी चीजें कहां पे है। 13 रजब आई, एक 3 दिन के बच्चों पे लिया, आगोश में अली आते कुरान सुना रहे हैं, तौरात सुना रहे हैं, इंजील सुना रहे हैं, ज़बूर सुना रहे हैं, सहीफे सुना रहे हैं। ये अली आसमानी किताबें नहीं सुना रहे हैं बल्कि पता बता रहे हैं कि इन किताबों के लिए आसमान पर न जाना, अली का सीना यही से कुरान आया है, यही से हदीस आई है, यही से एक सलवात भेजा। अल्लाह यकीन जानिए बहुत आसानी से, वरना यही नुक्ता में पढ़ता तो 1.25 घंटा भी पढ़ सकता था। सलवात भेजे। हाँ लेकिन दूर दूर से आए, जितना हो सके लेकर के जाए। माह मुबारक रमजान करीब है, इस्तिकबाल में बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज रसालत मान ने साबित कर दिया बड़ी आसानी से कि ये सारी चीजें अली के सीने में महफूज है, लिहाजा हमारे पास इतना इत्मीनान क्यों है कि कुरान पर कोई हमला करने वाला नहीं है, इस शरीयत पर कोई अब हमला होने वाला नहीं है, इसलिए कि अली के सीने पर हमला नहीं हो सकता। अली हमारा हाफिज है, अली हमारा मुहाफिज है, अली हमारा वारिस है, अली हमारा निगरां है, अली हमारा मालिक है, अली हमारा मोती है, अली हमारा देने वाला है, अली हमारा अता करने वाला है। मौला कायनात ने अता किया है। और जब बात आ गई तो अर्ज कर दे, एक मसला हल हो गया कि सारी चीजें कहां से आई। अब दूसरा मसला जिसको वहाबियों ने बहुत उठा रखा है, इनकी मोटी मोटी किताबें हैं, हमारे पास अर्श मुअल्ला क्यों बना, उसकी वजह अलग लिखी है। इनकी मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ है कि अर्श मुअल्ला इसलिए बनाया कि मादल्ला खुदा आके बैठेगा उस पर। एक सलवात भेजा इसलिए कि दो सवाल होता है, दो ही सवाल होता है कि एक, खाने काबा में जब अल्लाह को आना नहीं था तो बनाया क्यों, और जब अर्श पर कुर्सी लगा के बैठना नहीं था तो अर्श बनाया क्यों। इतना बड़ा अर्श, अल्लाह अकबर, दुनिया कहती है हम फदाइल रसूल नहीं पढ़ते, हम जैसा रसूल के रसूल के फदाइल को पढ़ते हैं ऐसे जो है फजीलत कोई पेश ही नहीं कर सकता। आप कहेंगे क्यों, इसलिए कि अर्श मुअल्ला के क्यों बनाया है, ये रसूलुल्लाह ने साबित किया है। खाने काबा को क्यों बनाया है, ये अली ने साबित किया है। और एक ही महीने में दोनों मसला हल हुआ। 13 रजब को अली ने साबित किया कि काबा अल्लाह के आने के लिए नहीं, अली के आने के लिए है, अली की विलादत के लिए है, अली के पैदाइश के लिए है। और अर्श मुअल्ला पर हमारे नौजवान घबराए ना, आजकल सवाल होता है, अभी कल भी मैं सफर था, ट्रेन में भी बातें होती रही और जगह जगह जो है बात होती रहती, तो आजकल नौजवान हमारा घबराया हुआ है कि अरे साइंसदान ने इतनी तरक्की कर लिया है, इतने आगे बढ़ गए हैं, अब तो मादल्ला वो अल्लाह के मुकाबिल में आ रहे हैं, और कोई मर जाता है तो इतनी देर के लिए रोक लेते। हमने कहा याद रखिए, साइंसदान कितनी ही तरक्की कर जाए वो मूजिद तो हो सकता है, खालिक नहीं हो सकता। मूजिद होना और इंशाल्लाह किसी बहस में पेश किया जाएगा। इजाद करना अल्लाह ने जहन दिया है, अल्लाह ने अक्ल दिया है, अल्लाह ने फिरासत दिया है, अल्लाह ने सियासत दिया है, अल्लाह ने क़ियासत दिया है, अल्लाह ने लुक़्वे बुलवाब दिया है, अल्लाह ने इसालत दिया है, अल्लाह ने हकीकत दिया है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने ताक़ुल दिया है, अल्लाह ने तदब्बुर दिया है, अल्लाह ने तशव्वुर दिया है, अल्लाह ने तफक्कुर दिया है, अल्लाह ने सोच दिया है, अल्लाह ने सूझ दिया है, अल्लाह ने बूझ दिया है, अल्लाह ने मुख दिया है। सलवात भेजे।
दिए हुए दिमाग से ईजाद तो कर सकता है, लेकिन याद रखें, आप कहेंगे ईजाद में और खल्क में क्या फर्क है? मिट्टी है, ये मिट्टी का असल खालिक, एक जर्रा भी मिट्टी कोई बना नहीं सकता है, इसका बनाने वाला खालिक है। हाँ, मिट्टी से दसियों चीज अपनी अक्लों को भिड़ा करके बना ले, ये ईजाद है, ये खल्क नहीं है। असल मिट्टी बना के दिखाओ तब मैं कहूंगा साइंसदान बहुत आगे जा रहे हैं। इसी तरह से पानी है, असल पानी का एक कतरा कोई नहीं पैदा कर सकता अल्लाह के अलावा। अलबत्ता पानी से ईजाद कर सकते हैं, हवा से ईजाद कर सकते हैं, खाक से ईजाद कर सकते हैं। तो अब दुनिया परेशान है, ये इन्होंने ये बना लिया है, ये तो वहां पर पहुंच गए हैं, ये चांद पर पहुंच गए, ये सितारे पहुंच गए। मैं कहूंगा परवरदिगारे आलम ने सारी दुनिया के ज़हनियत को झिझोड़ के रख दिया है। खबरदार, कभी भी मुकाबला न करना कि 7 आसमान पर रसूलुल्लाह गए तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा है मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ, लेकिन जहां जिब्राइल जैसा मलक पीछे हट गया वहां से हुक्म आया मेरे हबीब अपनी जूतियों के साथ आ जाओ। परवरदिगारे ये जूती का जिक्र क्यों कर रहा है? तो हो सकता है जवाब आए कि दुनिया सोच रही अर्श पर अल्लाह बैठेगा, अल्लाह नहीं बैठेगा, मेरे हबीब की जूती सजा ही जाएगी, वहां पर अर्श मुअल्ला पर नालैन पाक रखी जाएगी। और मैं कहूंगा परवरदिगार पहले आसमान पर कह देता, पहले ही से आदर दे दे रहा है मेरे हबीब हाथ तो रहे जूती मत उतारना, लेकिन वहां पर क्यों जिक्र किया जहां सारी दुनिया नीचे रह गई? अकेले अल्लाह का हबीब है या वो वहां पर जिसका लहजा है, जिसकी जबान है, जो बोलने वाला है, जो हमराही करने वाला है, जो सहाबत में है, जो रिफाकत में है, जो नफ्स में। सलवात भेजे आप हजरात। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या बहुत सरसरी तौर पर माशाल्लाह यकीन जानिए कुरान और हदीस और रिवायत से अकली तौर पर मिसाल के तौर पर जो मैं साबित कर रहा हूँ, हमारे रजा भाई भी अभी बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, तकरीबन 22-23 दिन का। यकीन जानिए ये भी तायद करेंगे 50 उलमा से मुलाकात हुई होगी, लेकिन ऐसी तकरीर जो कुरान और हदीस और मिसाल के साथ हो बहुत कम सुनने में आता है। सलवात भेजे आप। यकीन जानिए बहुत ज्यादा हलवा बना करके जो भारी बातें होती हैं, बहुत ही ज्यादा वजनी बातें होती हैं, उनको मिसाल के जरिए से अपने बच्चों को भी समझाने के लिए, बहुत आसान करने के लिए कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला ने क्या इनायत किया है, क्या तोहफा दिया है, आखिर वजह क्या थी। परवरदिगार तुझको जिक्र ही करना था तो पहले ही समझा देता, क्योंकि जब कोई सफर पर आता है तो पहले ही से सारी चीजें बता दी जाती है। यहाँ पर क्यों आने के बाद कहा अरे मेरे हबीब अपनी नालैन के साथ जो मूसा थे जिनको हुक्म हुआ था फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस है, तो ऐ मूसा अपनी जूती को उतार दो, इसलिए कि तुम पाक वादी में चल रहे हो। और अल्लाह का हबीब जब अर्श मुअल्ला पर पहुंच गया हुक्म हुआ है मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ। अल्लाह ताला बताना चाहता है कि नालैन का जिक्र वहां करके बता दिया कि दुनिया चाहे जितनी ज्यादा उड़ान पर जाए मेरे हबीब के नालैन के नीचे रहेगी, उसकी फिक्र भी वहां तक नहीं जा सकती है। तो रसूलुल्लाह की जूती का मुकाबला नहीं होता तो हम जैसे रसूल, हम जैसे रसूल। एक सलवात भेजे आप हजरात। इतने फदाइल हैं ऐसे, लेकिन दुनिया बचने की कोशिश करती है। अभी आप देखें 10-12 दिन पहले कितना रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा था, रजब के आखिर में कितना ज्यादा जिक्र हुआ, लेकिन आप अगर गौर करें तो आपको मिल जाएगा, टीवी पर हो चाइनल पर हो, कुछ जिक्र करते करते कहीं से बचने की कोशिश करते हैं। आखिर वजह क्या है, ये क्यों बचा जा रहा है? कब तक अहले बैत के जिक्र से बचेंगे, कब तक पंजतन के जिक्र से बचेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फर्श अदा के बहाने से अब जो है खलबली मची हुई है, अब गौर करने वाले गौर कर रहे हैं। यकीन जानिए इतना ज्यादा मजलिसों में हकीकतों को बयान किया जा रहा है कि अभी तकरीबन 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में 17 लाख अफराद ने कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली हक पर है, ज़हरा हक पर है, हसन हक पर है, हुसैन। एक सलवात भेजा। 1.5-2 साल के अंदर इतना काम हुआ सिर्फ पाकिस्तान में। मदीने में अलग हुए हैं, मक्के में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अल हसा में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अल खतीब में बहुत ज्यादा शियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये कौन सी चीज? ये मजलिस है, ये फर्श अदा है, ये इफाम व तफहीम है। आमने सामने आके बैठ रहे, पहले ही अगर बैठ जाते समझ में आ जाता। अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिनको हमने इतना बढ़ा चढ़ा रखा था, इतना बड़ा खलीफा बनाया था कि उनको नंबर देने लगे
تھے کہ یہ پہلے نمبر پر آئیں گے یا دوسرے نمبر پر، وہ اتنے گرے ہوئے نظر آئے، زہرا پر حملہ کر دیا، رسول اللہ کے گھر پر حملہ کیا، اور ہم خلیفہ بنائے بیٹھے، ہم خلیفہ بنائے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ چلے بات آگے تو یہ بھی عرض کر دیا جائے، چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث کے بعد عقلی طور پر بھی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ اتنا اچھا مائک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، آواز سڑک تک جا رہی ہے، یا جو ہے نوشیرے کے آخری حصے تک جا رہی، ابھی تک دنیا کے سمجھ میں نہیں آئے، بہت سے اکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ مکے میں حالت بحث چل رہی ہے، بڑے بڑے آیت اللہ حضرات ہمارے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب یہ ہار جاتے ہیں تو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بڑے بڑے آیت اللہ لگا، آیت اللہ حسن ابتئی ہماری ملاقات 105 سال کے ہیں، مکے میں ابھی مناظرہ کر کے آئے، 1 مہینے کا مناظرہ، البتہ طے ہوا تھا کہ بہت بڑے مجمع میں ہوگا، آخر میں ہوا کہ بند کمرے میں ہوگا، پھر یہ ہوا کہ ٹی وی پر نشر، تب بھی وہ تیار ہو گئے، انشاءاللہ کتاب آنے والے شبہائے مکے۔ 1 مہینے تک آخر میں مفتی ڈھیر ہو گیا، اس نے کان میں کہا معلوم ہے علی حق پر ہے، لیکن اتنی بڑی مسجد کہاں سے ملے گی ہم کو؟ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، ایک اور صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ جو لاہور میں ہوا تھا وہی مکے میں، لاہور میں بھی بہت بڑے آیت اللہ نے ماشاءاللہ، تو کھلبلی مچی، پوری دنیا میں لوگ خور کر رہے ہیں، یہ ماتم کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ فرش ادا کیا ہے، یہ علی علی کیا ہے، یہ زہرا کا در کیا ہے، ان کا گھر کیا، پوری دنیا ماشاءاللہ سمجھ رہی ہے، اب غور و فکر کر رہی ہے۔ تو آج عقلی طور پر ہمارا بالخصوص باہر کا مجمع انشاءاللہ لے کر کے جائے گا، اتنا اچھا مائک لگا ہوا ہے، آواز 1 کلومیٹر تک جا رہی ہے، اگر کوئی 40ویں میں دور سے آ رہا ہے اور پہلی دفعہ رشتہ داری ہے لیکن آئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تو ضرور آ کے باہر کھڑا ہو جائے گا، بھائی آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس ادا خانے میں ہے، کہاں پر ہے۔ مثلا وہاں پر یہ سلموں کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا آنے والا بھٹک رہا ہے، کبھی داہنی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں طرف، ابھی تک قرآن سے سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، حدیث سے سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، آج عقلی طور پر کہ علی کا نمبر کیا ہے، علی کا حق کیا، انشاءاللہ لے کر کے جائیے گا۔ بہرحال سلموں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں، آپ باہر سے آئے، دہلی سے آئے ہوئے ہیں، آپ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ کہا ہاں بیٹا میں پڑھا لکھا تو ہوں، آنے والا ICL بھی ہو سکتا ہے، PCL بھی ہو سکتا ہے، ادکاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن آواز سن کر کے ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ کیوں پریشان ہو، پتہ چلا 8-9 سال کا لڑکا، اب غور سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ کہا بیٹا جانا ہے، آواز آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا آدھا کھانا کہاں ہے، تو فوراً جو ہے کہنے والا بیٹا یہ کہے گا کہ آئیے ہم پتہ بتا دیتے، ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، تو اب ہم کو بتائیے چاہے آنے والا کوئی جج کیوں نہ ہو، آنے والا DM کیوں نہ ہو، اس کی عقل کیا کہے گی؟ اگر گاڑی پر ہے تو کہے گا بیٹا اگلی سیٹ پر بیٹھو تمہیں پتہ بتانا ہے، اگر پیدل ہے تو کہے گا بیٹا آگے آگے چلو تمہیں پتہ بتانا ہے۔ تعجب کی بات ہے ایک 5 سال کا بچہ صرف پتہ جان جائے تو عقل مند آگے رکھتے ہیں، میرا علی قرآن لے کے آیا، توریت لے کے آیا، انجیل لے کے آیا، زبور، پھر بھی 4تھا نمبر دے دیا اس کو، 4تھا نمبر پیچھے رکھا علی کو پیچھے رکھا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرمائے کہ کہاں کی حقیقت ہے، کیوں آخر ایسا کیا گیا کہ جو اعلان بھی کر رہا ہے اور سبھی نے اعلان کیا ہے کہ پورے کتابوں کا حافظ آیا ہوا ہے، پورے کتابوں کا محافظ آیا ہوا ہے، پورے اسلام کا محافظ آیا ہوا ہے، اور یقین جانیے کہیں سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مقابلہ اگر کریں تو ان باتوں پر غور کریں کہ رسالت مام نے ایک ہی میدان میں سمجھا، اور ماشاءاللہ آپ گئے ہیں زیارت کر کے، بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے قافلہ سارا نے بتایا ہو، جو کتابوں میں نہیں باقاعدہ وہاں دیواروں پر لکھی ہوئی ہے۔ پورے عراق میں جگہ جگہ مولا کی 1400 سال پرانی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو میدان احد میں جب جناب حمزہ کی قبر سے زیارت کر کے نکلیں گے چڑھائی پر احد کی طرف، چھوٹی سی پہاڑی ہے ہمارے، ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ اجمل صاحب دیکھ کر کے آئے ہوں، ماسٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، مکمل طور پر حق کی طرف آ چکے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ حفاظت پر جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ مجلس سن کے بہت دماغ کھل جاتا ہے، اور لوگ چاہے حالانکہ ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں آیا کہ نہیں میرا مولا ہی حق پر ہے، بقیہ سب باطل پر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ جو بھی علی کے مقابل میں آئے ہوں تو وہاں پر جائیں گے، تائید کریں گے کہ جیسے ہی آپ
निकल करके जाएं, ओहद में छोटी सी पहाड़ी है, तो वहां पर एक निशानी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मौला के जहां पर जुल्फिकार नाजिल हुई थी एक निशानी बना दी गई है। ये बद्दू अरब कहां तक छिपाएंगे? ये छिपाते हैं, अल्लाह छपाता है, अल्लाह रोशन करता चला जा रहा है। ये कोशिश तो कर रहे, बाउंड्री ऐसी कर दिया कि दिखाई ना पड़े, लेकिन देखने वाले जाके देखते हैं, ज़ियारत करते। हमने भी जाकर के वहां पर गौर किया, क्योंकि वहीं पर एक वाकया पहले हुआ था, रसूलुल्लाह के एक सहाबी का वाकया हुआ, फिर जो है मौला कायनात का वाकया हुआ। रसूलुल्लाह वहीं पर नाके पर बैठे हुए थे, इतने में देखा कि एक सहाबी लड़ता हुआ, घमसान की जंग है और हाथ झुलाता हुआ आ रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। रिसालत माद ने बुलाया, कहा अबू दज्जाना ये बताओ आखिर वजह क्या है कि सारे लोग लड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं, तुम हाथ झुलाते हुए चले आ रहे हो, तुम लड़ नहीं रहे, मेरे चाहने वाले हो। अबू दज्जाना ने कहा कि हुजूर मैं भी लड़ता, लेकिन लड़ते लड़ते मेरी तलवार टूट चुकी है, अब मैं क्या करूं। अब तारीख कहती कि रसूलुल्लाह नाके से झुके और एक खजूर की टहनी उठा करके दे दिया, कहा अबू दज्जाना जाओ ये काम करेगी। अब जब तक हाथ में लिया था वो खजूर की टहनी थी, लेकिन चलाना शुरू किया तो तलवार का काम कर रही है, नेज़े का काम कर रही है, भाले का काम कर रही है। जैसे ही आगे बढ़ गए, इतने में देखा कि सर झुकाए अली भी खड़े हैं। कहा भाई आप लड़ रहे थे, अभी तक जो है इतना हमला कर रहे थे, क्यों हमारे दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं? कहा कि या रसूलल्लाह, ऐ मेरे भाईजान, जैसे अबू दज्जाना की तलवार टूट गई थी ऐसे ही मेरी भी टूट गई। अब हमारी तरफ देखिए, जो लोग बराबरी के जो है सवाल करते हैं, कहते सहाबी भी बराबर है, अली भी बराबर, हमारी तरफ देखिए। अभी सहाबी आया था तो रसूलुल्लाह नीचे झुक गए, अली आया तो अमामा को संभाला, ऊपर देखने लगे, कभी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देख रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा क्या? कहा कि जहां का फौजी होता असलहा वहीं से आता है, सहाबी यहाँ का रहने वाला है, अली वहां से मेरे साथ आया है। इतने में आ गया ला फता इल्ला अली, ला दे, एक सलवात भेजे आप हजरत, एक सलवात भेजे आप हजरत। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इतने में जिब्राइल कसीदा पढ़ते हुए ला फतह इल्ला, बहुत जोर जोर बाकायदा आवाज सुनाई दे रही थी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कसीदा पढ़ते हुए आए। अब जो दुनिया मिलाने की कोशिश करती, कुछ कहते हैं बस चौथे कदम का फासला है, अली चौथे नंबर पर है तो इतना ही फासला है जितना चौथे नंबर पर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि न रसूलुल्लाह बैठते थे तो 2 बालिश का फर्क रहता था, अली जितनी दूर बैठते थे उतनी फासला है। कुछ लोग कुछ कहते थे, लेकिन मैं कहूंगा ये वाकया सुनने के बाद, ये सुनाने के बाद इसी से अंदाजा लगा लो कि जब सहाबी आया तो रसूलुल्लाह नीचे की तरफ झुक गए, जब अली आए तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी बताना चाहते हैं अली और सहाबा में 2-4 बालिश का फर्क नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। मिलाने की कोशिश न करना, सहाबी और है अली और। एक सलवात भेजे हाँ बदला। देखिए माशाल्लाह लखनऊ मुहावरा है, लिहाजा हमारे मुन्ना भाई भी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ का मुहावरा जमीनों आसमान का फर्क। एक सलवात भेजे आप हजरात। लिहाजा गौर करना चाहिए, इसलिए दुनिया तो बहुत बढ़ाती चढ़ाती है, बहुत ज्यादा अपनों को जो है। आज आप देखें कि कुरान में 3 ही वली का जिक्र है, लेकिन ये अपने वलियों को ले उड़ रहे हैं। जहां जाइए, बरेली शरीफ जाइए, वहां देखिए तो औलिया किराम है। आप अजमेर चले जाइए, यानी कोने, यहाँ तक कि आप चले जाए लाहौर तो वहां कदम कदम पर है, यहाँ एक वली साहब है, यहाँ एक वली साहब है। हमने कहा देखिए जितने भी वली बना लीजिए, हालांकि कुरान ने इजाजत नहीं दिया, कुरान ने 3 ही वली बताया है, उसके अलावा सब फकीर हैं, उसके अलावा सब मौला के मुरीद हो सकते हैं, कोई वली नहीं हो सकता। आप कहेंगे कुरान में 3 वली कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है या उसके बाद रसूल है या वो वली है जिसने हालत रुकू में ज़कात दिया है, यही 3 वली है। इसके अलावा तो सारे लोग फकीर हैं, वो भी अली के चाहने वाले हैं तो फकीर हैं, लिहाजा उनके दर पर भी जा सकता है, इसलिए कि दरे अली के फकीर हैं, दरे हसनैन के फकीर हैं। लेकिन कभी मिलाने की कोशिश न कीजिए। आप कहेंगे कैसे, इसलिए कि एक वली साहब का बड़ा चर्चा हो रहा था, हमने कहा जरा अपने वली साहब को बुलाइए, क्योंकि उनके लिए किताब में लिख दिया गुनीतुत तालिबीन में कि सारे औलिया के हेड हैं, सारे औलिया के बाप हैं, इनसे बढ़ करके कोई वली नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा वली साहब को जरा बुलाइए, तो कहा कि साहब ठीक है बुला के लाते हैं। हमने कहा वली साहब आपका दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन हमको जो एक जुमला कह देते हैं। हमने एक कागज लिया, उस पर लिख दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, जमीन पर रख दिया। हमने कहा वली साहब आपके इतनी ताकत है, जरा लब्बे रसूल पर पैर रख दीजिए, कहा तौबा कीजिए मैं भी काफिर हो जाऊंगा। पैर रखा
ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر، کبھی ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ الحمدللہ سالوں بھر سفر کرتا ہوں اور معلوم ہوتا رہتا ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں ایسے ہی اشکالات آ ہی جاتے ہیں، لہذا اعتراض کہیں ہوتا ہے، لیکن جواب میں آپ کو بھی دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ایسا دنیا کتنے ہی بڑھا چڑھا لے، یہ علی ولی ہے، لہذا کہتے ہیں صاحب ارے صحابہ کا تو اتنا بڑا درجہ تھا کہ وہ دوش بدوش چلتے تھے۔ ہم نے کہا دوش بدوش چلنا اور ہے، دوش پر چڑھ کے چلنا اور ہے، یہ صرف علی کی طاقت ہے، یہ صرف میرے مولا کی طاقت ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لہذا ایسا ولی ہم کو ملا ہے، ایسا امام ہم کو ملا ہے، ایسا شفیع ہم کو ملا ہے کہ ہم کو یقیناً تھوڑی سی بھی اتباع کر کے ہم دیکھ لیں، تھوڑی سی بھی پیروی کر کے دیکھ لیں، پھر میرا مولا ایسے ہی آغوش میں ہم کو لے لے گا جیسے ایک ماں لے لیتی، چونکہ روایت میں ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں نظر آئیں، جماعت میں نظر آئیں، جمعہ میں نظر آئیں، اس لیے کہ اس کی حقیقت حدیث قدسی میں ہے کہ جیسے ایک ماں اگر اس کا بیٹا غائب ہو جائے اور 15-20 سال تک اس کا بیٹا گھر میں نہ آئے، جب بھی کھٹکا ملتا ہے فوراً ماں دوڑ کے دروازے پر آ جاتے، کوئی آئے چاہے نہ آئے، اور دروازہ کھول کے جھانکتے میرا بیٹا آیا کہ نہیں، میرا بیٹا آیا کہ نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر 20 سال کے بعد بیٹا آ گیا تو فوراً سینے سے لپٹا کے اتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اب روایت نے سہارا دیا کہ جتنا 20 سال کے بعد ایک ماں اپنے بیٹے کو پا کے خوش ہوتی ہے، ایسا ہی پروردگار جب اپنے بندے کو اپنی مسجد میں دیکھا ہے تو رحمت جوش میں آ جاتی، میرا بندہ آ گیا ہے، میرا مومن آ۔ ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ آپ کے مائک کی اتنی تعریف کی آپ نے بیٹری بھی نہیں رکھا ہے، صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک اور صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بس عزیزان ایمانی، یقیناً چونکہ بہرحال 10-12 منٹ ممبر آپ نے تاخیر سے دیا تو آپ کا قصور ہے، ہم تو 1 گھنٹہ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ نماز کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ چونکہ نظر ہے، نماز ہے، جماعت ہوگی، اس کا بھی ثواب انشاءاللہ مرحوم کو اس حال ثواب ہوگا۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا مجلس سوم میں کہ جو کچھ بھی ان کے بہانے سے ہوتا جائے گا ان کے قبر میں اس حال ثواب ہوتا جائے گا، لہذا بہت سرسری طور پر اور بڑی تیزی کے ساتھ نماز کا بھی خیال ہے کہ انشاءاللہ 1:15 بجے تک نماز قائم ہو جائے اور انشاءاللہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خالق ماں ہے، وہ خالق ممتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو پہلی دفعہ 20 سال کے بعد اپنے آنگن میں دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اگر کئی سال کے بعد اپنے بندے کو اپنی مسجد میں دیکھ لے، اپنی جماعت میں دیکھ لے، اپنے جمعہ میں دیکھ لے، صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اور یقین جانیے یہ عقلی طور پر بات ہے، یہ جو آیت اور روایت سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے گھر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ترقی دے، آپ کے بچے پڑھے لکھے کہ آپ کے مکانات اتنے بڑے ہوں کہ گھر کے اندر ایک ہاتھ یا ایک جو ہے ایسا آنگن ہو جس میں محفل کر سکے، جس میں مجلس کر سکے، جس میں اجتماع کر سکے، نظر جو ہے، تو آپ یقیناً سال بھر تک خوش نہیں ہوں گے مکان بنوانے کے بعد، لیکن اگر کوئی محفل یا مجلس رکھ دے اور مجمع پورا آنگن میں آ کے بیٹھ جائے تو باہر نکل کے ٹھنڈی سانس لے کے کہیں گے ہم نے مکان بنوایا، آج سمجھ میں آیا، اتنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کا آنگن بھر جائے تو اتنا خوش، ہمارا خالق اپنی مسجد کو بھرا ہوا دیکھ لے، اپنی جماعت کو بھرا ہوا دیکھ لے، کتنا خالق خوش ہوتا ہوگا، کتنا مالک خوش ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ وہ اپنے بس حدیث و آخر بیان میں یقین جانیے دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ آج الحمدللہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، گھبرائی ہوئی دنیا، لہذا ایک نیا اعتراض کہتے ہیں صاحب جب دیکھو یہ مجلس و ماتم میں لگے رہتے ہیں، ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا؟
ये 2 महीना 8 दिन जो मजलिस होती है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शहरों में रात में भी आवाज, चूंकि हैदराबाद दक्कन में थे, अक्सर हमको याद है कि रात की मजलिस पढ़ते पढ़ते अजान सुबह तक जो है अजान होने वाली रहती थी और ये होते 10 मिनट और पढ़ लीजिए अजान होने वाली है। रात भर मजलिस, दिन भर मजलिस, 2 महीना 8 दिन तक। इसी तरह से बंबई में और लखनऊ में, उसके अलावा जौनपुर वगैरह में फिर माशाल्लाह अब आम सिटियों में भी इसलिए ज्यादा मजलिस बहुत आलीशान हो रही है कि दिल से मेरे दुआ निकल रही है, ये बच्चे पढ़ लिख करके जो बाहर जा रहे हैं और बाहर से पैसा भेजते हैं तो घर के वालिदैन खुश होकर कहते हैं कि पैसा आ रहा है तो हुसैन पर भी लगे, महफिल में भी लगे, मजलिस में भी लगना चाहिए, अदादारी में। एक सलवात भेजे आप हज़रात। लिहाजा माशाल्लाह बहुत हालात सही हो गए। जगह जगह मैंने सवाल किया कि साहब 10 साल पहले इतना अच्छा आधा खाना नहीं था, अब इतना अच्छा आधा खाना आप क्या बन गया? अरे साहब मेरा पोता सऊदीया चला गया है, मेरा पोता अमेरिका चला गया, मेरा बेटा फला जगह, उसने पहली तनख्वाह भेजी और कहा शुरू करा दीजिए, अभी फतेहपुर देख करके आ रहे हैं, या माशाल्लाह ग्वालियर में बन रहा है जगह जगह। तो पता चला इसकी भी बरकत है। लिहाजा पढ़ाई लिखाइए और इसकी बरकत देखिए। इंशाअल्लाह आप जो है अपने इलाके से किसी एक बच्चे को भी अधिकारी अगर बना दे, पूरे इलाके को देखेंगे कैसे समझ जाता है। मस्जिद भी बारानक हो जाएगी, हुसैनिया भी बारानक, एक बच्चा भी कुछ बन करके निकल जाए। सलवात भेजे आप। लिहाजा इतनी ज्यादा कसरत से मजलिसों को देखने के बाद एतराज करते हैं साहब आखिर इनको जो है कौन बख्शवाने वाला है? जब देखो अली अली, जब देखो हुसैन हुसैन, इतना ज्यादा अली अली कर रहे हैं कि बल्कि अगर ये तस्बीह दे दी जाए तो यकीनन ये तस्बीह बड़ी प्यारी होगी कि जब इंसान मुसलसल ये कहता है, या जो है अभी बैठे हुए हैं आप, तकरीबन 1 घंटा से मजलिस शुरू हो गई, 1.25 घंटा हो रहा है, और पता चला 1.25 घंटे के अंदर अगर आप 2-3 दफा पानी मांग ले तो जो भी बुजुर्ग होगा वो फौरन कहेगा क्या साहब आज मछली खा के आए हुए हैं क्या? इसलिए कि मछली पानी में रहती है, उसको टुकड़े टुकड़े करके पेट में भी डाल दिया जाए तो वहां भी पानी पानी पानी, जब तक मछली का असर है तब तक पानी पानी। अब दुनिया हम पर एतराज न करे कि हर वक्त अली अली क्यों कर रहे हैं। हमने कहा माओ ने दूध की घुट्टी में अली अली कह के पिलाया है, उठे तो अली, बैठे तो अली, सोए तो अली, चले तो अली, बचपने में अली, जवानी में अली, बुढ़ापे में अली, कब्र में अली, अली 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 अली। सलवात भेजे आप हज़रात। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि मौ ने ऐसा किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मन वजदा बर्द हुब्बे न फी क़ल्बे फलयक्सुर दुआ लिल उम्मे, जो अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत की ठंडक महसूस करे उस पर लाजिम है कि अपनी माँ के लिए बकसरत दुआ करे कि माँ इतनी नेक थी जो यहाँ पर नजर आ रहा है, वरना माँ अच्छी ना होती तो बाहर से कहता है ये बिदअत हो रहा है, ये शिर्क हो रहा है, ये कुफ्र हो रही। सलवात भेजना बस आखिरी बयान में इसलिए कि नमाज का वक्त हुआ चाहता है और नजर नियाज और दूर दूर जाना भी है और मौसम भी ऐसा है। अल्लाह ताला ने बहरहाल ये अच्छा मौसम है, बेहतरीन है, अल्लाह ताला और बरकत नाज़िल फरमाए। तो इस एतराज का भी जवाब, और वो भी कुरान मजीद के जरिए से कि साहब कैसे हमारी बख्शिश होगी, हमको कौन बख्शवाने वाला है। हम फिर कुरान मजीद की तरफ चल रहे हैं। कुरान मजीद में एक वाकया है जनाब मूसा का। जनाब मूसा एकदम दरिया के किनारे पहुंच चुके हैं। ऐसे मौसम में जब फिरौन दिखाई दे रहा है, सारे उसके लश्कर दिखाई दे रहे, लेकिन ये ऐसी जाहिल कौम है, ऐसी हट्टी, यहाँ भी बहस, यहाँ भी मुबाहिसा। जनाबे मूसा ने 12 रास्ते भी बना लिए और देखा कि बस 2-4 मिनट बचा है, फिरौन पहुंचने वाला है और पहुंच गया तो सब मारे जाएंगे। लेकिन ये अकड़े खड़े हुए। कहा साहब अब क्यों अकड़े खड़े? कहा कि हुजूर आपने रास्ता तो बना दिया, लेकिन ये कह दिया इमाम के पीछे पीछे चलना। तो हारून तो एक ही है और कबीला 12 है। अगर एक कबीला इमाम के पीछे चला तो बाद में फक्र करेगा और हमको जो चिढ़ाया जाएगा। लिहाजा कुछ ऐसा मौजज़ा दिखाइए कि हर कबीले के सामने उनका इमाम हो। मूसा ने कहा जाओ, ये भी कर दिया। अब लोगों ने देखा एक हारून यहाँ भी नजर आ रहे हैं, यहाँ भी नजर आ रहे हैं, यहाँ भी। अब तो समझ में आ गया दुनिया इतना कहते एक अली, कभी सलमान के पास, कंबर के पास, अबूदर के पास, जहरा के पास, जिब्राइल के पास, रसूल के पास, एक वक्त में 40 जगह कैसे? हमने कहा हारून एक दफा में 12 जगह नजर आ सकते हैं। ये तो फखरे हारून है, अली फखरे हारून का नाम। सलवात भेजे आप। एक मसला हल हो गया कुरान से कि अली 40 जगह कैसे? कुरान में है कि हारून एक ही वक्त में 12 जगह पर। अच्छा, हमने कहा अब ये बताओ कि जब मूसा चले थे तो बहुत से बेचारे नए नए मुसलमान थे, उन्होंने इबादत कब किया?
اس لیے جب جناب موسیٰ کی ہیبت کو دیکھا تو بہت سے لوگ آئے کلمہ پڑھ لیا، اور جناب موسیٰ نکل رہے تو انہوں نے کیا عبادت کیا تھا، کیا اطاعت کیا تھا، صرف عقیدہ ہی بنایا تھا نا کہ یہ میرے جو ہے رسول ہیں، یہ میرے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا تھا، یہ کہہ کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اب بتاؤ جب امام پار نکلا تو کوئی ڈوبا کوئی مرا، کہیں گے نہیں صاحب امام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے لہذا مرنے کا سوال ہی نہیں، ڈوبنے کے سوال ہی نہیں۔ ہم کہیں گے اب دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے، جس کا ایک امام ہو وہ اپنے 12 قبیلے کو سنبھال لے، جس کے 12 امام ہو ایک قبیلہ ہو، علی کیا علی نہیں سنبھالیں گے، حسن نہیں سنبھالیں گے، حسین نہیں، انشاءاللہ ہمارے 12 کب سنبھالنے والے سوال بھیجے آپ اللہ اکبر۔ لہذا صرف ہم ان کی پیروی کر کے دیکھیں، اتباع کر کے دیکھیں، قدم بقدم چل کے دیکھیں، یقین جانیے بڑی باریکی ہے۔ مولا کے ہم چاہنے والے ہیں لیکن میرے مولا کے پاس بہت باریکی ہے، میرا مولا بہت باریک ہے، ایک باپ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس بات کے حالانکہ قرآن مجید سے بہت سی آیات ہیں، صرف میں روایت مولا کائنات سے لے رہا ہوں کہ مولا کائنات کے پاس دعوت ہوئی، باپ جب آنے لگا تو اپنے نوجوان بیٹے کو بھی لے کے آیا، نوجوان بیٹا جب آیا تو روایت جانتا تھا، جناب ابراہیم کا بھی واقعہ اس کے ذہن میں، رسول اللہ کا واقعہ اس کے ذہن میں، اور مولا کائنات کی اخلاق، مولا کائنات کے اخلاقیات تو مشہور تھے، لہذا پھولا نہیں سما رہا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا اور خوشی کے مارے جو ہے پھولا نہیں سما رہا تھا، اس کے دل میں یہی تھا کہ آج جیسے ہی کھانا کھا لوں گا فوراً میرا ہاتھ میرا امیر المومنین دھلائے گا، مولا کائنات دھلائیں گے، لہذا بڑا خوش، نوجوان لوگ خوش ہوتے ہی ہیں، علی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، پنجتن کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، جیسے ہی کھانا کھا لیا مولا نے اشارہ کیا ہاتھ مت دھلنا، بہرحال اس کے باپ کو بلایا، محمد حنفیہ پانی لے کر کے آؤ، محمد حنفیہ پانی لائے، باپ سے کہا کہ ہاتھ نیچے کرو، وہ کانپا جا رہا ہے، مولا کائنات ہے امیر المومنین لیکن حکم ایسا ہے، لہذا مولا نے کہا کہ میں ہاتھ دھلاؤں گا، وہ ہاتھ دھلتا جا رہا ہے، اور جو اس کا بیٹا دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا میرا نمبر آنے والا ہے، جیسے ہی باپ کا ہاتھ دھلا لیا کہا محمد ادھر آؤ، یہ لوٹا لو اور اس نوجوان کا ہاتھ دھلاؤ، ایک مرتبہ کہتا مولا میں نے کیا غلطی کیا ہے، مولا کائنات نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا کبھی بعد میں آنا تو تمہارا ہاتھ دھلا دوں گا، اگر ابھی علی تمہارا ہاتھ دھلاتے تو باپ اور بیٹے کا مرتبہ برابر ہو جائے گا، باپ کا مرتبہ الگ ہے بیٹے کا مرتبہ الگ ہے، اس وقت محمد حنفیہ ہاتھ ایک سلوات بھیجے آپ حضرات، یہ باریکی ہے اسلام میں، بہت باریکی، مولا کائنات ہیں، کتنی باریک بینی سے جب یہاں پر آپ نے ایک غور طلب بات دے دی تو ہر چیز پر غور کریں گے، یقیناً ہم ان کے چاہنے والے ہیں لیکن میرا مولا ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں بخشے گا، دیکھے گا عبادت کیا ہے کہ نہیں، اطاعت کیا ہے کہ نہیں، ہمارے قدم بقدم چلا ہے کہ نہیں، اور ماشاءاللہ اب تو مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ایک چھوٹے بچے کی مثال اس لیے کہ ہم جیسے مولا نے عمل کیا ہم مکمل طور پر تو نہیں کر سکتے، لیکن مولا نے خود فرمایا آئینونی، کوشش تو کرو، قدم بقدم چلنے کی کوشش کرو، ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ بچوں کو جلدی داخلہ کرا دیا جاتا ہے، 3.5 سال کا ہوا فکر مند ہو گئے کہ صاحب اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ کرائیں، حالانکہ جیسے انگریزی اور جو ہے ہندی پڑھانے کے لیے اتنے کوشش کرتے ہیں ایسے ہی اگر قرآن کے لیے کوشش کر جائے تو پورا گھر برکتی ہو جائے، صلوات بھیجے آپ حضرات، جہاں دن بھر گھر میں پتہ چلا انگریزی کے جملے رٹے جا رہے ہیں اور ہندی میں کچھ یاد کیا جا رہا ہے، اگر قرآن کی تلاوت ہونے لگے تو پھر اس کا برکت یہاں بھی اس کی برکت دیکھیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے، لہذا فکر مند ہو جاتے ہیں، 3.5 سال کا بچہ ہوا، پتہ لگائیں گے، 4 لوگوں سے پوچھیں گے شہر میں سب سے اچھا اسکول کون ہے، پتہ چلا کہ نہر پر ہے یا فلاں جگہ ہے، تو 3.5 سال کی عمر میں اب اس کو جب داخلہ کرانے کے لیے لے گئے تو ابھی بچہ ہے، ابھی نہ بیچارے کا ہاتھ کام کر رہا ہے نہ ذہن کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی استاد اس کو دے گا کچھ لکھنے کے لیے، اگر جو ہے ایسے ہی بیٹھا رہا وہ تو جو استاد ڈانٹے گا چاہے 3 سال کا اور 4 سال کا ہے تب بھی کہے گا تم کیوں جو ہے پینسل لے کر کے بیٹھے رہے، تم نے پینسل کو کیوں نہیں چلایا، کیوں نہیں لکھے گا، اب کتنی ہو گئے چھوٹے ہیں، لیکن اگر وہ جا کر کے 2-4 دن میں سمجھ گیا کہ استاد کیسے لکھوا رہا ہے، اب دیکھا کہ استاد ایسے پین چلا رہا ہے ایسے پینسل چلا رہا ہے تو وہ بھی کوشش کرے گا، تو استاد جب دیکھے گا کہ بیٹا 4 سال کا ہے یہ لکھ تو رہا ہے لیکن لکھ نہیں پا رہا ہے تو ہاتھ پکڑا کر کے اے لکھوائے گا بی لکھوائے گا اور پھر شاباشی بھی دے گا بیٹا بہت اچھا لکھا، حالانکہ خود اس نے ایسا کیا
दिया है, लेकिन शाबाशी उसको क्यों दे रहा है? आपने गौर किया? इसलिए कि कुछ तो हरकत किया, यानी थोड़ा भी हरकत करे तो उस्ताद हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरा मौला कहता मालूम है अली का मुकम्मल रास्ता तो नहीं, अपना कदम पकड़ चलो हम तुमको उठा के ले जाएंगे। हसन तैयार है, हुसैन तैयार है, सलमान तैयार है, कंबर तैयार है, अबादत तैयार। सलवात भेजे आप हजरात। कोशिश तो करके देखो बस। अज़ीज़ान ईमान, यकीनन फज़ाइल का एक बाब है, एक समंदर है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि बाहर के भी लोग थे, यकीनन बहुत से मसाइल ऐसे थे जिनका ज़रूरी था कि ऐसे मसाइल जहन में होना चाहिए। बड़े एतराज़ात होते हैं, बहुत ज़्यादा कील खाल होते हैं, और यकीन जानिए मैं गौर कर रहा था कि जब यहाँ पर जनाजा उठने वाला हुआ, इतनी रात थी लेकिन फिर भी दूर से आने वाले भी आ गए। रोना तो इसी बात पर है कि जिनके इतने मैंने फजाइल पढ़े हैं, चाहे पंजतन के फजाइल हो, करबला वालों के फजाइल हो, जब एक आम आदमी मर जाता है और 1400 साल के बाद भी पुरसे का तरीका अजीब होता है, आने वालों का तरीका अजीब होता है कि 1400 साल के बाद एक चाहने वाला जाए तो 11:30 बजे रात में इतने लोग आ जाए, हाय हुसैन का जनाजा। बस अजीज हो, यकीनन बहुत ज्यादा देर नहीं, इसलिए कि नमाज भी होना है और नजर नियाज भी होना, दूसरे भी एहतमामात हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन उनके पुरसे के लिए यही जुमला काफी है कि मरहूम इतनी रात में तुम गए और हादसा हो गया था, रात में जनाजा उठाया गया, लेकिन इतनी तारीकी ये शब में इतने लोग नजर आ रहे थे, हाय रसूल अल्लाह का जनाजा रखा हुआ, अली इंतजार कर रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं। इमाम हसन का जनाजा। हाँ दीदो, आवाज बुलंद हो जाए तो समझ जाइए पुरसा आपका पहुंच रहा है, कब्र में इशारे सवाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। अगर इतना ही होता, सिर्फ ना आते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आने के बाद जो बेहुरमती की, अरे शहजादी ज़ैनब के कलेजे को कोई संभाल ले। जैसे ही 72 शोहदाए करबला के बारे में पता चला कि तब शहीद हो गए, इतने में एक आवाज आई, अरे हुसैन के लाशे को पामाल किया जाएगा। अरे जैसे ही ऐलान हुआ, हबीब के चाहने वाले आए, हबीब का लाशा हटा लिया, उनका कबीला आगे बढ़ा, खबरदार उम्र साथ ऐसा नहीं हो सकता। अरे इजाजत मिल गई और कभी जनाजा हटाया। एक ज़हरा का लाल करबला के मैदान में, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब क्या करे, अपने माजाए को देख रही है, घोड़ों की नाल बंदी हो रही है, ज़हरा का लाल जलती हुई जमीन पर, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, हाय हुसैन का जनाजा करबला के मैदान में पामाल। हाँ 40वें की मजलिस है, आप चहलुम करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। आज एक 40वां होता है, कितने लोग लगे जाते हैं, कोई कहता मेरे चाचा का 40वां है, कोई कहता मेरे बाबा का 40वां है, कोई कहता मेरे भाई का। हाय करबला में अब्बास का चेलो, हुसैन का चेलो, इकलौती बहन उम्मे कुलसूम के साथ चहेती बहन है। अरे कैसे 40वें के लिए, हाँ मोहब्बत एक तरफा नहीं, रिवायत कहती है, अरे जैसे ज़ैनब मचल के चल रही है, ऐसे हुसैन भी मचलने वाले हैं। रिवायत का जुमला है, अरे कब्र हुसैन से हुसैन का ज़ाहिर लिपटा हुआ बयान कर रहा था, अरे मेरे हबीब के हबीब मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इतने में क्या आवाज आई, अरे जाबिर दूर हट जा, मेरी कब्र से दूर चला जा जाबिर, मेरी बहन चहलुम मनाने के लिए आ रही है। अरे जाबिर दूर गए, ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, घुटनियों चलती हुई कब्र हुसैन से लिपट गई। भैया भैया आपकी बहन बहुत ज्यादा माफी की तलबगार है, आपने जो छोटी सी अमानत 4 साला बच्ची अरे सकीना को मेरे हवाले किया था, वो कैद खाने शाम में तड़प तड़प के दुनिया से चली गई। अरे भैया जवाब क्यों नहीं देते, आपकी बहन ज़ैनब करबला में चहलुम मनाने के लिए एक ही वक्त में अब्बास का 40वां, हुसैन का 40वां, अली अकबर का 40वां, 72 का 40वां।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا